So once again, good morning everyone. Okay, and welcome to the day 25. Okay, day 25 of this English language training. Okay, and today we are going to learn few new things. Okay, so how many people practiced yesterday? How many people have practiced yesterday about reading task? How many people have practiced yesterday about reading task? Train is late today but reach at the right time or to destination. Yes, true, absolutely. Okay. So how many people have practiced yesterday about reading task? Me. Okay. Just type me in comment box fast. Come on, go ahead. How many people have practiced yesterday? Okay. Good. Chitra Moske, Shivcharan Bokhar. Okay, guys. So let me clear to you. Today we will have 5 to 10 minutes extra. Okay. So 8 बजे नहीं खत्म होगा हमारा क्लास 5-10 minutes extra लग सकते हैं. Okay. So be there because we have started late. The reason behind that we are unable to connect with the Zoom. Okay. So few times these issues will be there as I already shared. So one more thing which I want to share with you. If you remember today, as we planned, today was the last day of our training. Okay, as we planned, but because of the internet issue, we have we have unable to conduct our class for 3 days and the one day because of traveling. So altogether we have 4 days extra from today. So it will go up to 29. Okay, it will go up to 29 and 27th of this month, 27th of December. Also, we are having holiday. The reason behind that, on 27 we are having our own physical workshop at Indore, right? As you all know about that. So many people have aware about that workshop. So if you have any connections at Indore, like आपके रिलेटिव वहाँ पे हो गए, आपके फ्रेंड्स वहाँ पे हो गए, आप किसी ग्रुप में हो गए, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में कि जहाँ पे इंदौर वाले लोग हो सकते हैं, राइट? So please share the message with them. Okay, share the words with them like we are coming over there. Okay, so उसका अगर आपको कुछ चाहिए डिटेल्स, सो प्लीज डू कांटेक्ट विथ मी. ओके, कल मुझे किसी का मैसेज आया था, उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे है, सर प्लीज आप मुझे शेयर कीजिए जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है, सो आई विल सेंड टू देम. ओके, सो मैंने ये सेंड किया है किसी को, तो भी उनका नाम भी मुझे याद है, एक सेकंड. बबीता जी, आई थिंक बबीता, यस. बबीता जी आज नहीं है शायद, बट बबीता जी उनके साथ मैंने शेयर किया है कल ऐड. ठीक है. सो इफ यू नीड दैट ऐड, इफ यू नीड any information about indoor workshop, so you can freely ask me anytime. Okay, so guys, we are going to conduct on coming Sunday. That program time is 11 to 4, 11 to 4 timing hai. Lunch, breakfast and high tea, everything is included over there. The fees is 299. Okay, 299 रुपीज फीस है. 3 स्टार होटल में वो प्रोग्राम है. ओके, सो if anybody who is over there, so you can join us. And one more good news, big news. On coming month in January, we are going to conduct our physical workshop in Pune. Okay, we are going to conduct a physical workshop in Pune. So how many people will join us? How many people will join us if we have physical workshop in Pune? Type me in comment box how many people will interested to join us. Okay, so fees will be 399 or 499. Okay, so but in that 399 499 we are going to provide you the full day workshop, 5 hours workshop with lunch, with high tea, with breakfast, plus
a bundle of knowledge, okay, and plus meeting me personally we are going to meet in that workshop, okay. So how many people? High tea means the tea which we are having after the workshop at the evening, जो इवनिंग में हम टी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हाई टी, ओके। यस, सो हाई टी जो इवनिंग में हम लेते हैं, ओके। ओके, सो मॉर्निंग में एक टी लेते हैं, दैट इज ब्रेकफास्ट के साथ जो लेते हैं वो, उसके बाद लंच, एंड दैट इज आफ्टर द वर्कशॉप वी आर हैविंग high tea, okay. So number of activity we are going to perform in that workshop, and it's a physical workshop में बहुत मजा आता है, that's a different feeling altogether, okay. Personal meet is very very important, yes. Yes, thank you, that's also important for me. So पर्सनली आप मिल सकते हैं, मुझे कुछ सवाल है आपके पूछ सकते हैं, एंड द टॉपिक इज बी योर ओन मेंटोर, बिकॉज दैट इज द और मेंटरशिप प्रोग्राम जो है हमारा, उसका वो फिजिकल वर्कशॉप होता है, ओके। सो वो होगा, आदतें कैसे बदल सकते हैं हम, डिजिटलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होगी, एंड आई एम नॉट ओनली पर्सन ओवर देयर whom you can meet. Him Singh will be also there. He is my friend. Okay, he's habit coach from Chennai, so he will be also there to meet you. So वो हम next मंथ प्लान कर रहे हैं जनवरी में, ओके। जो लोग इस चीज से अवेयर नहीं होंगे, ओके, जिन लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, सो वो लोग भी आ सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि फिजिकल वर्कशॉप कैसा होता है। हाउ मेनी पीपल हैव अटेंडेड द फिजिकल वर्कशॉप बिफोर? किसी ना किसी का, आपने किसी ट्रेनर का, किसी कोच का फिजिकल वर्कशॉप इसके पहले अटेंड किया है? कितने लोग हैं ऐसे? टाइप मी इन कमेंट बॉक्स, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी फिजिकल वर्कशॉप अटेंड किया है किसी ना किसी ट्रेनर का? रोटी जी, गुड। सो कालिदास जी, वेयर आर यू फ्रॉम? आर यू फ्रॉम पुणे, राइट? सो आर यू फ्रॉम मुंबई, राइट? ओके, ओके, गुड, गुड। सो फॉर फिजिकल वर्कशॉप में बहुत यू कैन एंजॉय अ लॉट, यू कैन गेट सो मेनी थिंग्स, ओके। एंड वहाँ पे प्रैक्टिकल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, राइट? Okay, so don't worry. We are also coming in Mumbai. We are also coming in Nagpur, Nashik, okay, Bangalore, and सारे जितने बड़े सिटी है उतने उसमें हम जाने वाले हैं दिस ईयर, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर गोइंग टू मीट everyone, okay. How many people from Nashik from, I think few people are from Nashik also, so we are planning Nashik also, okay. Yes, so Ashmi, I would like to meet you over there, okay. सो नासिक में अगर हम आते हैं तो डेफिनेटली आपसे मिलना चाहेंगे, ओके। सो नासिक, मुंबई, उसके बाद में पुणे, एंड बेंगलोर, ऐसे सारी बड़ी बड़ी सिटी में हम जाने वाले हैं, ओके। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंदौर, ओके। यस, सो I hope I need your all your well wishes, all your blessings and all, like, okay. So for that workshop, so this is our first workshop together. Before this I have conducted many, but किसी के साथ में पहली बार conduct करा, okay. Yes, so let's start today's learning, okay. I hope my PPT is clear to everyone. My PPT and my voice is clear. My video is not important. Is my PPT and my voice clear? Okay. Yeah, of course. Kolhapur, Satara also where Satara maybe. Kolhapur and Satara will plan. सांगली चांसेस कम है, सातारा भी चांसेस कम है, बट लेट अस ट्राई करते हैं, ओके। सातारा विल डू, बिकॉज सातारा ऑब्वियसली इन माय लिस्ट फ्रॉम लास्ट ईयर, सो विल डू सातारा ऑल्सो, बट बोल नहीं सकते, ओके। सो नॉट कंफर्मेशन इज नॉट देयर। सातारा आपको पास में आता है चिटनीस सर? सातारा आपको, नहीं, सातारा पास है आपके? विच इज नियर टू यू, सातारा और सांगली? विच इज नियर टू यू, सातारा और सांगली? बोथ? ओके, गुड, विल सी।
देखते हैं, ठीक है। बट जाने वाले हैं 100%, 12 cities दिस ईयर, 12 cities। ओके, सो यस, हु दोज आर फ्रॉम पुणे, हु दोज आर फ्रॉम पुणे, जो पुणे से है, बेसिकली दोज आर फ्रॉम पुणे। आई रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन ओवर देयर। ओके, आई रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन। ओके, Vidya ma'am is there. Vidya Rani, are you there? No, I think she is not there. Vidya Rani, are you there? No. So she has attended my physical workshop. That's why I am asking her. Okay. She has there in my physical workshop 2 times. Okay. Okay, no problem. Let's begin. Let's begin the day. Let's begin the day. Okay. So once again, welcome you all. And today we are going to learn about 5 proverbs first. Okay. 5 proverbs. Okay. So which is the first proverb? First proverb is a bird in hand is worth two in bush. Okay. The bird in hand is worth two in bush. यानी जो आपके हाथ में है, ओके, उसे छोड़कर, है ना, दूसरी चीज के पीछे भागना। ओके, वॉट एवर यू आर डूइंग वेल, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप जिस चीज में अच्छा कर रहे हो उसे छोड़ना और किसी और चीज के पीछे भागना, यानी किसी एक चीज पे फोकस ना करना, है ना। सो दैट इज कॉल्ड अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। ओके, किसी एक चीज पे फोकस करो, उसे अच्छी तरह से करो, या फिर जो आप जिस पे आप फोकस कर रहे हो उसे छोड़ के किसी और चीज के पीछे भागना, दैट इज कॉल्ड अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। ये तो आपने सुना होगा, है ना, एक्शन, कि बोलने से ज्यादा अगर आप एक्शन करते हो, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द speaking। Okay, action is more important। Okay, so that is the next sentence। Okay, third proverbs is third proverb is a bad workman quarrel with his tools, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना, ऐसा कुछ है ना, वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हम्म, pen is mightier than a sword। Okay, yeah, there are many proverbs। Okay, I have more than 120 130 proverbs, but unable to give you all। I will give you in the notes, don't worry, with the meaning। Okay, हाँ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, right। So a bad workman quarrel with his tools, a penny is saved is a penny gain। पैसे बचाना ही पैसे कमाना है। ओके, पैसे बचाना मतलब पैसे कमाना है, राइट। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, जो इंसान, यू नो बहुत ज्यादा, हम बोलते हैं उसे चंचल होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, उसका कुछ फायदा नहीं होता, राइट। बहुत ज्यादा एक्टिव मतलब मोर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट उसे बोलते हैं हम, बिकॉज वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में क्या कर देता है, बहुत सारी गलतियां कर देता है, राइट। नेक्स्ट, तो दीज आर द 5 प्रोवर्ब्स। कल हम और 5 देखेंगे, है ना, एवरीडे 5 देखेंगे हम। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट ईमेल्स। ओके, ईमेल्स, ईमेल्स जब हम सेंड करते हैं या ईमेल जब हम रिसीव करते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट इन रिगार्डिंग टू ईमेल। ओके, ईमेल सबको पता है, सब लोग ईमेल देखते हैं अपना। हाउ मेनी पीपल चेक ईमेल एवरी सिंगल डे? How many people check emails every single day? Just type me in comment box। कितने लोग emails चेक करते हैं every single day? गुड, अमेजिंग। सो आप सभी को ईमेल्स आपको मिला है, मेरा ईमेल मिला है, इंग्लिश स्पीकिंग का जो हमारा ये होता है, सेशन होता है, उसका ईमेल आता है, आप सभी को देखा है आपने? ईमेल आता है आपको? ओके, गुड गुड, रिमाइंडर आता है? ओके, गुड, अमेजिंग। हम 2 दिन से हम नया मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट कि आपको बोलने को चांस मिले। ओके, सो दैट इज द रीजन वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ मीटिंग पिछले 2 दिन से। ओके, नाउ द नेक्स्ट, आई हैव रिप्लाइड टू योर ईमेल्स। ओके ओके, आई हैवंट सीन दैट। ओके ओके, सो फर्स्ट sentence regarding email is, can I have your email address? Simple sentence। okay, can I have your email address? क्या आप मुझे आपका ईमेल एड्रेस मिल सकता है? कैन आई हैव यूर ईमेल एड्रेस?
यहाँ पे इसी सेंटेंस को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, कैन आई हैव योर पर्सनल ईमेल एड्रेस, कैन आई हैव योर पर्सनल ईमेल एड्रेस। आपके मस्तिष्क में, अगर आपके मस्तिष्क में कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं रिगार्डिंग ईमेल, सो यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स, ओके, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स, कैन आई हैव योर ईमेल एड्रेस, क्या मुझे आपका ईमेल एड्रेस मिल सकता है, कैन आई हैव योर ईमेल एड्रेस, ओके। नेक्स्ट, माई ईमेल एड्रेस इज sagarpatil149@gmail.com, माई ईमेल एड्रेस इज डैश डैश डैश, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप दे सकते हैं। कैन यू प्लीज गिव मी योर ईमेल एड्रेस, यस दैट इज ऑल्सो राइट, ओके। नेक्स्ट, do you have his email address, do you have his email address, do you have Rajesh email address, do you have Mandar's email address, do you have Srushti's email address, do you have Meghna's email address, okay, do you have her email address? See how many sentence you can make. Guys, every day I am telling you to make few sentences. Whatever you are learning, make few sentences on that topic. Okay. So today also you have to make few sentences. Make minimum 10 sentences on email. Okay. And just post on those sentences on the group. Make 10 sentences on email and post those sentences on the group, okay. Today you have to do it, you have to do it. Just write down few sentences on email and just post on the group so that people can understand more. Can you send me detail on my personal email address? Good. Yes. So you can also use like this, can you send me details on my personal email, okay. Our personal email address is also correct, okay. The next sentence is, देखो how many sentence you can make, मैंने अभी आपको 4-5 सेंटेंस बोल दिए, ठीक है। कैन यू सेंड इट टू माई ईमेल एड्रेस, ये वैसा ही है, कैन यू सेंड इट टू माई पर्सनल ईमेल एड्रेस, कैन यू ईमेल इट टू मी, कैन यू ईमेल इट टू मी, कैन यू ईमेल द कोटेशन टू मी, कैन यू ईमेल द कोटेशन टू मी, okay, can you send the quotation on my email address, ओके। नेक्स्ट, कैन आई वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, क्या मैं आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर सकता हूँ, कैन आई वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ओके। कैन आई यूज योर ईमेल टू सेंड email or send mail, okay, can I use your mailbox to send email, can I see your mailbox, क्या मैं आपका मेल बॉक्स देख सकता हूँ, कैन आई सी योर मेल बॉक्स, okay. Next, can you mail me your documents as a PDF? Yes, yes, yes. So these are the sentences, okay. The address I have on file appears to be incorrect, जो मेरे फाइल में जो एड्रेस दिखा रहा है, आई होप दैट इज इनकरेक्ट, ओके। समझ में आ रहा है सबको, ओके, यस। नेक्स्ट, द ईमेल एड्रेस सेंट बाय यू सीम्स टू बी इनकरेक्ट, सीम्स टू बी मतलब लग रहा है, सीम्स टू बी लग रहा है, द ईमेल एड्रेस सेंट बाय यू सीम्स टू बी इनकरेक्ट, जो ईमेल एड्रेस आपने शेयर किया है, जो ईमेल एड्रेस आपने भेजा है वो गलत लग रहा है, जो ईमेल एड्रेस आपने भेजा है वो गलत लग रहा है, द ईमेल एड्रेस सेंट बाय यू सीम्स टू बी इनकरेक्ट, ओके। द नेम मेंशन बाय यू सीम्स टू बी इनकरेक्ट, ओके, ओके, समझ रहा है आपको, समझ रहा है, ओके। विल आई गेट कंफर्मेशन मैसेज ऑफ योर ईमेल एड्रेस, ओके। Your email address is incorrect. Please share correct email address. Right. Check my email in your spam folder if any. Good. Yes. Okay. The email address sent by you seems to be incorrect. जो आपने email address send किया है वो लग रहा है वो गलत है. Okay. The name mentioned by you seems to be incorrect. Okay. I will send you the documents. ये first sentence है. Or image to your email account, okay. I'll send you documents or images to your email account. Can I email the files to you, क्या मैं आपको files email कर सकता हूँ, can I email the files to you,
Okay, my email is getting full, I better delete some old mail. मेरा जो email है, मेरा जो mail box है, that is getting full, it's better to delete some old email. समझ रहा है सबको? Type me in comment box if you are getting the sentences. Type me or type gi. Got it? Gi. Got it? Okay, got it guys? Type got it. Good, good, good. Amazing, amazing, amazing. Yes, thank you. Okay, next. I have that email. I will forward it to you. मेरे पास वो email है. I will forward it to you. I have that email. I will forward it to you. Guys, how many people love to receive email from my side? कितने लोगों को मैं अगर email भेजूंगा तो वो लोग पढ़ेंगे? Okay, I will share few knowledge with you with the help of email. Okay, या फिर email से so you have to be in my email list. Okay, so मैं कल आपको एक लिंक दूंगा, वहां पर जाकर आपको अपना नाम भरना है, नंबर भरना है और ईमेल एड्रेस भरना है। ओके, तो वहां पे क्या होगा कि यू विल रिसीव ईमेल फ्रॉम माय साइड। वैसे बाय द वे आप वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके, ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो दैट वहां से भी आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। ठीक है? यस, आफ्टर ऑल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, राइट? या, next. I'm planning to make few videos on English language. Don't worry. So that also you will get in coming month. Okay. Next. I will need the information by noon. Can you email it to me soon? I'll need the information by noon. मुझे दोपहर तक information चाहिए. Can you email it to me soon? क्या आप जल्दी से जल्दी मुझे सेंड करोगे? ओके, क्या आप जल्दी मुझे सेंड करोगे? राइट? ओके, या, नेक्स्ट। इफ, नाउ विल सी द इफ सेंटेंसेस। इफ के सेंटेंसेस हम देखने वाले हैं अभी। ओके, सो ईमेल वाला सबको ध्यान में आ गया? ईमेल इज क्लियर? ईमेल अबाउट क्लियर? क्लियर अबाउट ईमेल? यस, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, ओके, नाउ, ओके, यस, नाउ सेंटेंसेस ऑफ इफ। इफ, ओके, इफ का मतलब क्या है? अगर, राइट? अगर, राइट? ईमेल, सॉरी, इफ इफ आई एम लेट आई विल कॉल यू। अगर मैं लेट होता हूँ, सो आई विल कॉल यू। यस, जर तर बोलते हैं हम उसे इन मराठी। ओके, इफ आई एम लेट आई विल कॉल यू। इफ आई एम लेट आई विल कॉल यू। अगर मैं लेट होता हूँ, देन आई विल कॉल यू। ओके, इफ यू नीड मी यू कैन कॉल मी एट होम। अगर आपको मेरी ज़रूरत होती है, आपको मेरी ज़रूरत है, तो आप मुझे घर पर कॉल कर सकते हो, घर पे बुला सकते हो। ओके, ओके, इफ वी गो आउट अर्लियर वी कैन गो टू सिनेमा ऑन टाइम। अगर हम थोड़ा जल्दी बाहर जाते थे तो हम टाइम पर सिनेमा पहुंच सकते थे। ओके, इफ वाले सेंटेंसेस, मेक फ्यू सेंटेंसेस गाइज। आपको अगर कुछ याद आ रहा है, कुछ बना सकते हो, सो मेक सेंटेंसेस एंड पोस्ट इन चैट बॉक्स। कम ऑन, गो गो गो। आपको अगर कुछ याद आ रहा है, so just make few sentences on if you have English book then please give me. Good, good, amazing. Okay, if you have English book please give me. Okay, if you pay me I can buy 2 tickets. अगर आप मुझे पे करते हो तो I can buy 2 tickets of movie. Okay, yes, go ahead. If you work hard you definitely get success. Yes, right. If you have photos then send me in the WhatsApp. ओके, ठीक है। इफ यू हैव फोटोज देन व्हाट्सएप मी। दैट्स अ सिंपल सेंटेंस। ओके, इफ यू हैव फोटोज देन व्हाट्सएप मी। इन मीटिंग, इफ मीटिंग इज नॉट स्टार्टेड कॉल सागर सर। ओके,
if meeting is not getting started, अगर शुरू नहीं हो रही, ऐसा बोलना है हमें। तो अगर ये आपने जो लिखा है वो भी सेंटेंस राइट है कि मीटिंग अगर शुरू नहीं हुई है तो कॉल करो। शुरू नहीं हो रही है तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? इफ मीटिंग इज नॉट गेटिंग स्टार्टेड। ओके, यस। सो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। इफ यू अलाउ मी देन आई विल कम एट योर होम। इफ यू अलाउ मी, आप अगर मुझे, यस राइट, देन आई विल कम टू योर होम। ओके, इफ यू टीच अस विल अटेंड द क्लास वेर यू कॉल। अगर आप हम हमें सिखाओगे तो हम कहीं पर भी आएंगे क्लास अटेंड करेंगे। ओके, इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट। ओके, यस, एब्सोल्युटली फाइन। इफ यू वांट पेन आई कैन गिव यू, राइट। इफ यू स्टडी हार्ड you will pass in exam. Good, good. If I am free then sure I will join you. Okay, if I have time then surely I will join you. Okay, if I am available then surely I will join you. Okay, अलग अलग तरह से एक ही सेंटेंस को आप बोल सकते हो। इफ यू आर अनेबल टू ज्वाइन चेक योर कनेक्शन और पासवर्ड एंड ट्राई अगेन। if you are unable to join, please install Zoom app in your mobile. Okay, please reset your mobile. If you are unable to hear me, kindly check your connections. Okay, you are unable to see my video, kindly check your connection. If you are invite them they will come. गुड, देखो कितने सारे सेंटेंसेस हमने बना लिए। ऑसम गाइस, ऑसम ऑसम, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑसम, सुपर्ब, एब्सोल्युटली फाइन। ओके, if you are free then call me please। okay, if you practice every day surely we will learn English। yes, definitely, surely we will learn, चाहिए, ईडी की जरूरत नहीं है। ठीक है, महेंद्र सिंह पाटिल, नॉट ईडी नीडेड इन दैट। इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे श्योरली वी, यहाँ पे देखो, हाँ, तो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो, इफ वी प्रैक्टिस एवरी डे श्योरली वी विल लर्न इंग्लिश। इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे श्योरली यू विल लर्न। You we will learn is also correct, but that is not making sense. Okay, that sentence is not making sense. So if you are using you in first sentence, use you in second sentence also, or use we both the places। okay, then that will make sense। if you study hard you will pass an exam, ये तो है। if you give respect take respect, ये भी है। I think most of you about, I think most of know अबाउट इफ, या दैट्स ऑसम, बहुत से लोगों को पता है। इफ यू इन्वॉल्व देम, लेकिन सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम उस पर भी काम करना पड़ेगा हमें। ओके, इफ यू इन्वॉल्व देम दे विल नॉट फॉरगेट। ओके, लर्नड, नॉट लर्नड, लर्न, वी विल लर्न, LEARN, लर्न, फर्स्ट फॉर्म। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लर्न। इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। yes, maximum people are aware about if, good, good। if there will be network then I can take। okay, 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 stop, stop। बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हैं आपने, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। okay, now if he studies well he will pass, if you come early will go to college, if a team plays well then they will win। okay, do you mind if we leave early। okay, now the comparison। okay, ये भी, इसमें भी आपको सेंटेंसेस लिखना है, मेकिंग कंपैरिजन। okay, मेकिंग कंपैरिजन पे आपको सेंटेंस लिखना है। ओके, नाउ इफ ही कम्स आस्क हिम टू वेट। if you do anything consistently will convert into habit। yes, now how we compare everyone। okay, how we compare। okay, जैसे कि अभी ये देखिए, राधा इज एज ब्यूटीफुल एज जानकी। ओके, क्या किया हमने यहाँ पे? राधा को जानकी से क्या किया? कंपेयर किया। नाउ हियर we need to understand, if we are comparing someone with someone, if you are comparing someone with somebody, okay, so how you can use sentences। जैसे कि देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, राधा इज एज ब्यूटीफुल एज जानकी। राधा जो है वो जानकी जितनी है उतनी ही ब्यूटीफुल है, उतनी ही खूबसूरत है, राइट। राधा इज एज ब्यूटीफुल एज
जानकी। ओके, अभी अगर मुझे ये बोलना है राधा इज, यानी राधा जो है वो ज्यादा ब्यूटीफुल है जानकी से, व्हाट आई शुड से? राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन जानकी। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं? राधा और जानकी को आई एम कंपेयरिंग देम। Okay, actually we can't compare anyone. Okay, but it's a sentences. Okay, these are the sentences, so that is the reason हम किसी को compare नहीं कर सकते. Everyone has his unique strength. Okay, everyone has his own beauty, right? हर कोई इंसान इस दुनिया में जो है वो यूनिक है. He has his own talent, own beauty, and everything he has his own. Okay, Nashik city is as pleasant as Pune. Yeah, right. That's true. That's true. Because I have visited Nashik in last, I think, before 3 4 months. Okay, I visited Nashik. Nashik is beautiful, awesome. Nashik is also beautiful city. Okay, Nashik really beautiful. That's the reason we have decided to plan our program in Nashik. Nashik is really awesome. She's a lot more intelligent than him. देखो, लॉट मोर लॉट मेनी ऐसा नहीं होता. ओके, एक तो लॉट यूज करना है, एक तो मेनी और मोर यूज करना है. ठीक है. हाँ, सो आप ऐसे बोल सकते हो शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम. ओके. यस. नेक्स्ट, योर शर्ट इज नॉट एज डार्क एज माई शर्ट. ये नेगेटिव सेंटेंस है. देखो, नॉट यूज हुआ यहाँ पे. योर शर्ट इज नॉट एज डार्क एज माई शर्ट. जितना शर्ट मेरा डार्क है उतना आपका डार्क नहीं है. योर शर्ट इज नॉट एज डार्क एज माई शर्ट. ओके, समझ रहा है आपको ये? समझ रहा है? नेहा इज स्मॉल एज मेघा. एज स्मॉल एज मेघा. ही रन्स फास्टर देन हिम. ही रन्स फास्टर देन हिम कैसे होगा? ही रन्स फास्टर देन कोई नाम यूज कर सकते हो आप, है ना? ही रन्स फास्टर देन कोहली. ही रन्स फास्टर देन सचिन तेंदुलकर. ओके, सो ऐसा कुछ नाम यूज करना है आपको. ओके. मुंबई इज एज बिग सिटी एज पुणे. ओके, सो महेंद्र सिंह जी, सबको पता है मुंबई इज अ सिटी. ओके, एंड आपको भी पता है, सबको पता है पुणे इज ऑल्सो सिटी. सो यू कैन यूज मुंबई इज एज बिग एज पुणे. ओके, ऐसे यूज कर सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मुंबई सिटी इज एज बिग एज पुणे सिटी. ओके, ऐसे भी बोल सकते हो आप. ठीक है. सी गाइज, सम फ्यू, हम बोलते हैं ना, देर आर फ्यू सेंटेंसेस और देर आर फ्यू वर्ड्स विच इज जो हमें दिखते नहीं है बट हम उन्हें एज्यूम कर सकते हैं. ओके, if I'm telling you about Mumbai, so obviously you should consider that like Mumbai is a city, right? So वो word कैसा है? वो assume करते हैं हम, automatically we are assuming that word कि Mumbai is a city, right? So next, Ramesh is taller than Rajesh. Ramesh is taller than Rajesh. Ramesh is, यहाँ पे देखो, महेश is richest than सुरेश. राइट राइट, सही लिखा आपने. योर वर्क इज नॉट एज हार्ड एज मेनी वर्क. आपका जो काम है वो इतना हार्ड नहीं है, राइट? प्रेजेंट यंग जनरेशन इज ओवर स्मार्टर इन IT फील्ड देन अर्लियर. या, yes, it's a right sentence. Okay, you can use smarter also, you can use more active, you can use. Okay, yes. Then online workshop, conducting online workshop is easier than the physical workshop. Conducting online workshop is easier than physical workshop. The reason behind that, in physical workshop we have to manage so many things. Okay, but in online workshop we just have to manage Zoom, internet connection. You should have one room setup, you should have a good camera, you should have a good laptop, and you should have a good internet connection. That's all. Okay, but in physical workshop
you should manage people, you should manage each and everything, you should pay for hotel bills, you know. So online workshop is always cheaper than physical workshop. Okay, सो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, बिकॉज इट्स फॉर योर नॉलेज, इट्स नॉट फॉर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़ी बड़ाइयाँ बताना चाहता हूँ, बड़ाइयाँ नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको पता हो इसलिए मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी मुझे याद आई। तो गाइज, जब फिजिकल वर्कशॉप हम करते हैं, फिजिकल वर्कशॉप जब हम करते हैं, सो उसका खर्चा बहुत होता है। आपको पता है, अभी जो इंदौर वाला वर्कशॉप हम करने वाले हैं, 32,000 रुपीज वहाँ पे 5 घंटे का जो हमारा यू नो बिल वहां पे होगा, 5 घंटे का, 5 घंटे का होटल का बिल 32,000 रुपीज हो रहा है। 32,000, 32। ओके, एक दिन का भी, पूरा दिन भी नहीं, सिर्फ 5 घंटे हमें होटल यूज करें हम, उसका 32,000 रुपीज बिल हो रहा है। वहीं पर देखिए, हम पिछले 30 दिनों से, 25 दिनों से हम रोज 1 घंटा मिल रहे हैं, तो हमें कुछ भी खर्चा नहीं है इसमें ज्यादा। ठीक है, सिर्फ इंटरनेट का खर्चा है, जो भी नोट्स आपके है उसका खर्चा है। ठीक है, यही अगर हम लाइव में करते थे, अगर मेरा कोई क्लास होता था वहां पे अगर आके आप पढ़ते थे, तो मुझे क्लास का रेंट भरना पड़ता था, इलेक्ट्रिसिटी एंड ईच एंड एवरीथिंग, आपको भी एवरी डे आना पड़ता था घर से, आपके गाड़ी का पेट्रोल जाता था, या फिर आपको ट्रैफिक में से आना। देखो हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में बहुत फर्क है, और ऑनलाइन में बहुत ज्यादा फायदा है, बिकॉज यू विल गेट ऑल द थिंग्स इन चीपर रेट, कम रेट में आपको मिलता है। ओके, सो देखिए, अगर पुणे में हम वर्कशॉप करेंगे, सो ऑब्वियसली हमें होटल करना पड़ेगा, खर्चा होगा, और 500 रुपीज, 600 रुपीज पर प्लेट, या फिर कभी कभी उससे भी ज्यादा का खर्चा होता है। एंड वी हैव टू स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज ऑन दैट होटल एंड एवरीथिंग। सो इट इज अ बेस्ट टाइम फॉर अस टू लर्न ऑनलाइन। बट लोग ऑनलाइन कोर्स देखते नहीं है, एक्चुअली हमने देखना चाहिए, सीखना चाहिए ऑनलाइन, बिकॉज दैट इज अ इजियर एंड चीपर वे टू लर्न। अदरवाइज वी हैव टू इन्वेस्ट, सो वी हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी, हमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे किसी चीज के लिए। ऑनलाइन कोर्सेज जो आप खरीदते हैं वो आप बार बार भी देख सकते हैं, फिजिकल कोर्स आप एक ही बार अटेंड करते हैं, 1 डे ओनली, और अगर बाद में आप भूल जाएंगे तो फिर किसको पूछेंगे, राइट? सो दैट इज द रीजन, ऑनलाइन कोर्स इज ऑलवेज बेस्ट एंड चीपर। Okay, Radha is more intelligent than the Vishakha. Okay, Corona situation made all of us active in virtual learning compared to classroom learning. Yeah, that's really important. Okay, and that's really amazing कि Corona की वजह से, that Corona has given chance to learn online. Okay, to be virtual, to be active on virtual platforms, right? So that's an amazing thing. So it will be beneficial for you as well as us. It is beneficial for you as well as us. It is beneficial for student as well as trainers also, because हमारा भी कितना सारा खर्चा बचा है। मुझे एक एक छोटी सी बात मैं शेयर करूंगा आगे आपसे, कि अगर जो वीडियो का ट्रेनिंग आपने मुझसे लिया है, जो वीडियो मैंने आपको सिखाया है कि वीडियो कैसे एडिट करना है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, और वीडियो कैसे बनाना है, एडिटिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें जो आप सीखे हो, यही अगर प्रैक्टिकल वर्कशॉप में आप आते थे, ओके, सो 5 घंटे का, 6 घंटे का वर्कशॉप अगर हम करते थे फुल डे, तो उसका चार्ज होता था मिनिमम 10,000 रुपीज, मिनिमम 10,000, मिनिमम 10,000 to 15,000, राइट? और वो भी हम एक ही दिन लेते थे। अगर हम 2 दिन लेते थे, फॉर एग्जाम्पल लोनावाला वगैरह ऐसे सिटी में अगर हम लेते थे, तो उसका चार्ज होता था 15,000 रुपीज, मोर देन 15,000, 15,000 के आसपास। और 2 दिन में अगर आप नहीं सीखते थे, फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप 2 दिन में सीख जाते थे और बाद में अगर भूल जाते थे, तो आपके पास कुछ भी नहीं था बैकअप प्लान, राइट? अभी ऑनलाइन में क्या है, आप अगर कुछ चीजें भूल गए, तो आप कभी भी मेरे वेबसाइट पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, फिर से सीख सकते हैं, राइट? सो दैट इज अ लाइफ टाइम एक्सेस टू यू। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि मैंने खुद 1.5 लाख रुपए भर के ऐसे कोर्सेज किए हैं, 7 डेज, 5 डेज। मगर व्हाट आफ्टर दैट 5 डेज, उन 5 डेज, उन 5 दिन के बाद क्या? कुछ भी नहीं। नो वन इज देयर टू हेल्प अस।
₹1.5 लाख देने के बाद भी 5 दिन खत्म हो गए तो कोई नहीं वहां पे जो हमें हेल्प करेगा, राइट? यहाँ पे हम लोगों को 2,000 3,000 5,000 में कितना हेल्प कर रहे हैं, राइट? And why that is possible? That is possible because of this online system, because of this virtual things, right? Yes. Next, the Mahabharata is more interesting than the Ramayana. महाभारत जो है रामायण से ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ओके, आई गॉट मार्क्स मोर देन 95. मुझे 95 से ज्यादा मार्क मिले. द हिमालय इज हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया. हिमालय इज हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया. नेक्स्ट, Mahatma Gandhi was greatest leader. Comedy with Kapil is most popular show on the TV. ओके, कॉमेडी विद कपिल है ना, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ऐसा कुछ है शायद, वो मैंने गलत लिखा, बट वॉट एवर जो भी है, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल इज मोर पॉपुलर शो, मोस्ट पॉपुलर शो ऑन टीवी. आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट. योर मोबाइल इज मोर एक्सपेंसिव, आपका जो मोबाइल है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है. जो मोबाइल इज, योर मोबाइल इज मोर एक्सपेंसिव. शी इज मोर अंडरस्टैंडिंग देन मी, वो मेरे मुझसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है. शी इज मोर अंडरस्टैंडिंग देन मी. ओके, सो गॉट इट गाइज. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. आज के लिए इतना ही ठीक है, मगर मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आज आप सीखे हो इस आधे घंटे में, 30-40 मिनट्स में हमने जो भी सीखा है उसका प्रैक्टिस करो, उस पर सेंटेंस बनाओ. और हर एक इंसान, जितने लोग यहाँ पे 34 पीपल आर देयर ओवर देयर, everybody will put at least 5 to 10 sentences in the group, at least 5 to sentences इन द ग्रुप. इफ के सेंटेंस आपको बनाने हैं, इफ इज वेरी वेरी इजी, एंड आपको कंपैरिजन सेंटेंस बनाने हैं. ओके, शनिवार वाड़ा इज अ मोस्ट प्लीजेंट प्लेस इन द पुणे, राइट? यहाँ पे क्या हुआ, हमने कंपेयर किया है ना. शी इज मोर अंडरस्टैंडिंग देन मी, वो मुझसे ज्यादा समझदार है, राइट? आप वहां पे नाम यूज करो, है ना. ओके, अमिताभ बच्चन इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टर इन इंडिया, राइट? ऐसे कुछ सेंटेंस यूज करो, है ना आप. विराट कोहली इज अ बेस्ट क्रिकेटर देन आई एवर सीन. ओके, as I ever seen, जो भी है. Okay, very much new information we learned today. Okay, thank you. So just again, we have to follow our rituals. What is our ritual? Our ritual is, whenever we complete our class, we have to go to our WhatsApp group and post over there how we learned today, what we learned today. Okay, so we have to post over there. Okay, and tomorrow again we are going to meet tomorrow on at sharp 7 o'clock. We will learn few new things. Okay, and one more time I'm reminding you, if you have any relatives, any relation, any connections in Indore, please do contact me, so I can help, I can send you the details, and they can join us over there in Indore. Okay, and we are soon planning for Pune also. Okay, yes. Thank you so much everybody, thank you so much for your valuable time, for your efforts. एंड आज थोड़ा लेट हुआ हमें ज्वाइन करने के लिए बिकॉज ऑफ द जूम, बट डोंट वरी, ऐसे इशू आते हैं, ऐसे इश्यूज आते रहेंगे. ओके, एंड वी आर कीप मीटिंग ऑनलाइन, डोंट वरी. सो आफ्टर फिनिशिंग दिस 30 days ऑल्सो वी विल प्लान समथिंग फॉर यू, डोंट वरी. जितने लोग हमसे जुड़े हैं, ओके, उनसे हम बिल्कुल जुड़े ही रहेंगे. ओके, और कुछ नई चीजें हम सीखेंगे. ओके, एंड फ्यू पीपल फ्रॉम शेगांव, जो भी शेगांव से है, जितने लोग शेगांव से, उनको मैंने बताया है सैटरडे संडे इज ऑफ. दिस सैटरडे संडे वी आर नॉट गोइंग टू हैव क्लासेस. ओके, because I have another program, as I already said, as I already mentioned. Okay, so thank you so much everybody, thank you so much from the bottom of my heart for you know attending today's session, and for waiting for that waiting period जो आपको पहले थोड़ा वेट करना पड़ा, 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी है. So thank you so much everybody. Meet you tomorrow in the morning. Okay, so till then, be happy, keep smiling, bye bye, take care, and God bless you. Thank you so much.